اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت حبیب اور یہ جو ہے سرکار کے والد محترم حضرت طاہر اشرف جیلانی کی بارگاہ کی چادر ہے، یہ سرکار کے تسبیحات اور یہ جو ہے سرکار کی انگوٹھی مبارک پہنا کرتے ہیں۔ الٹا کر آپ اندازہ لگائیں، آپ سوچیں کہ چھوٹے سے بچے 6 مہینے کے بچے مسجد میں لانا منع، شرم منع، حکم شرع کیا ہے؟ اگر 6 مہینے کا سال لڑکا بے عقل بچہ جس کو سمجھ نہ ہو اس کو مسجد میں لانا منع ہے۔ مثال سنیے، ہائے ہائے، یہ 6 مہینے کے بچے کو سجدہ کیسے دیا؟ وہ فاطمہ جس پر کائنات وہ فاطمہ جس کی طہارت کی مثال نہیں، وہ فاطمہ جو امیداری ہے، وہ فاطمہ جن کے الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں دیکھتی ہے کہ قدرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مصطفیٰ آپ جو مانگو گے آپ کی بیٹی فاطمہ کے صدقے میں آپ کی امت کو بخشوں گا۔ وہ فاطمہ جس کے تقویٰ اور طہارت کی گواہی قرآن نے دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ خود سوچیں، ہے نا؟ میں نے یہ پردہ بیان کیا تھا، میرا من کرتا ہے کہ پھر بیان، میرا من کر رہا ہے ہم اور آپ کو بھی پیدا ہو بڑی خوشنصیب ہے کہ ہمیں ماں ملی، اس میں کوئی شک نہیں، ماں کی فضیلت بڑی ہے۔ میں ایک خدا کو بولوں، دنیا میں کوئی عورت تھی بغیر خون کے ماں نہیں بنتی، دنیا کے میڈیکل سائنس سے میں نے بتایا ہے۔ واہ ہے فاطمہ، تیری اولاد اتنی پاک کہ خدا نے تجھے اس سے بھی پاک رکھا۔ ہائے ہائے، تیری اولاد اتنی پاک کہ خدا نے تجھے اس خون سے بھی پاک رکھا۔ اولاد ہوئی مگر خون نہیں، بیٹا ہوا مگر خون نہیں۔ اب طہارت کا اندازہ لگاؤ کہ رب نے اس کے لیے اتنا اہتمام کیا ہو کہ بیٹا اس کے اولاد ہو رہی ہے تو سوچو کتنا پاک، کتنا پاک، اے پاک کا کوئی عالم ہے کہ جس ناپاک پر خدا کی عادت نے غلط ڈالی وہ بھی پاک ہو گیا۔ وہ اولاد ہے، اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی کوئی شک کی بات ہے؟ اچھا مجھے ایک بات اور بتائیے تب میں واقعے پر جاؤں گا۔ ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہاں الحمدللہ سب جمع ہیں، ابھی جلسہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ آپ لنگر کھا کر کے یا جو بھی یہاں تبرک ہے وہ کھا کر کے انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کبھی آپ نے سوچا کہ اس حاضری اس آنے سے فائدہ کیا ہے؟ آپ کو یہاں آنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ آپ یہی سوچیں گے کہ مزار شریف کی زیارت ہو جائے گی، حضرت سے ملاقات ہوگی۔ اب میں آپ کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ غور سے سنیے، پورے
कान को खोल करके अल्लाह जुनैद बगदादी हैं। कौन है? सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। एक मोची समझते हैं उनका जो सदा एक मोची गैर मुस्लिम मोची हजरत जुनैद बगदादी की महफिल में आकर किनारे में बैठ गया और हजरत जुनैद बगदादी पूरी तकरीर में उसी को देखते रहे और फिर थोड़ी देर के बाद वही कोने ही में उसका इंतकाल हो गया। लोगों ने कहा कि हुजूर ये तो गैर मुस्लिम है। फरमाया किसने कहा? देखो फरिश्ते आए हैं उसे सलाम करने के लिए, फरिश्ते आए हैं उसे सलाम करने के लिए। आपकी तवज्जो चाहिए वाकया निगाही मकसूद में, मगर आपको वही समझ में आता है इसलिए कोई बयान कहा हुजूर वो तो मुझे गैर मुस्लिम है। फरमाया हाँ है नहीं, हाँ है नहीं, हाँ में और है में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे अंदर यही है, उनके नजदीक था और हमारे नजदीक है। हमारे नजदीक जिंदा है, जिंदा है, कल भी के आज भी है और कयामत तक रहेंगे। ठीक है? और किसी के नजदीक जिंदा थे तो हम उनको मानते तुम भी थे, है नहीं। दिख रहे हो कि है नहीं थे, सीधी सी बात, दिख रहे हो कि है नहीं थे, तुम भी हमारे नजदीक थे। तवज्जो चाहिए। अब आपकी पूरी नजर हजरत ने फरमाया कि तुम जानते हो ये अपने वक्त का वली है। अल्लाह का हुजूर ये वली कब बन गया? अभी तक तो मुझी था। फरमाया जब मेरे तकरीर में मेरे बात सुनाया उस वक्त भी काफी ही था, मगर जब ये बैठा और मोहब्बत से मुझे देखा और ये कहा कि मैं तो उसे देखा नहीं हूँ जिसके बंदे ये हैं, उसके दिल में मेरी मोहब्बत रच गई और रचने के बाद उसने चाहा कि मैं कलमा उसे पढ़ा दूं, मगर मौका इतना नहीं था कि मैं उसके पास चला जाऊं। अब आपकी तवज्जो जुनैद एक तरफ उनके अल्हम्दुलिल्लाह रूह का मामला देख रहे हैं कि अब फरिश्ते आएंगे रूह निकालने के लिए, और एक तरफ पूरी देख रहे हैं। फरमाया मैंने यहीं से बैठे बैठे उसे कलमा पढ़ाया और उसने कलमा पढ़ा और उसने मेरी निगाह में डाला और मैंने उसकी निगाह में डाला। इस निगाह में उसके कुफ्र को खत्म किया, कलमा को डाला और विलायत के आपने समझा? जब एक निगाह ने काफिर को वली बना दिया, एक निगाह ने काफिर को वली बना दिया, तो आले रसूल की इस पर निगाह पड़ जाए, मेरा तो मानना ये है कि वो वैसा वली हो जाता है कि गौस पाक ने फरमाया कि कुतुबुल अख्ताब है, वो के बारे में फरमाया कि कुतुबुल अख्ताब है। अब जाहिर सी बात है कि जब निगाह से कुतुबुल अख्ताब बनता है तो ये ऐसे नहीं है हकीकत से बनता, मोहब्बत से बनता। जब आपके दिल में आले रसूल की हकीकत होगी, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, उल्फत होगा, तो याद रखें कि आप दुनिया के किसी कोशे में होंगे मगर यहाँ से होंगे। अच्छा मुझे एक और बात बताइए बड़े प्यार से। भारत में मैं भी मौलाना मौलवी हूँ और बहुत एक बड़े खानदान से ताल्लुक है मेरा। मेरे दादा हज़रत अल्लामा सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के मशहूर मालूम आलिम दीन मस्जिद। मगर आपको मैं आज एक जुमला आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़े गौर से सुनिए। लाखों मदरसे हिंदुस्तान में हैं मगर शायद कहीं एक मुसलमान होता होगा। एक दरवेश 90 लाख लोगों को कैसे मुसलमान कर सकता? अब अंदाजा लगाएं, सोचिए, एक दरवेश 90 लाख लोगों को मुसलमान कैसे कर सकता? मुसलमान कैसे किया? वो निगाहे मुस्तफा ही, वो चेहरे मुस्तफा था, बिला तशरीह व तमसील छोड़ दिया हज़रत फातिमा, चले गए, जाने दिए। और कीजिए एकदम लास्ट पॉइंट है और सबसे तकलीफ का पूरा मकसद है, जाने दिए। जैसे ही जाने दिया सुभान अल्लाह रहमत की बारिश हो। हुजूर ने फरमाया कि किसी काम के दरमियान अगर बारिश हो जाए तो वो काम मत, अगर किसी को दफन किया जाए और दफन के करने के बाद अगर बारिश हो जाए तो मैयत की मग़फ़िरत हो जाती है। सुभान अल्लाह। आज हमारी हाज़िरी कबूल हो गई, आज हमारी हाज़िरी कबूल हो गई। ये रहमत की बरसात बता रही है कि ये बारिश नहीं है बल्कि हमारे गुनाहों को धो रही है।
की बात सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा ही हुआ कि बारिश हुई, इधर उधर लोग नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत फातिमा के बेटे से जितना इमाम आली मकाम है, अब नोट कीजिएगा। सबसे पीछे हज़रत ज़ुबैर 11 सफ लगी हुई थी, मैं एकदम आपको प्रैक्टिस को दिखा रहा हूँ। 11 सफ लगी हुई थी, पिछले सब में हज़रत ज़ुबैर, और जैसे इमाम हुसैन गए हज़रत ज़ुबैर हट गए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो चाहिए। हज़रत ज़ुबैर अशरे मुबश्शरा मसीह हट गए और उन्हें जाने दिया। हाय हाय, आगे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ये भी अशरे मुबश्शरा। जैसे ये गए पीछे देख कैसे रहे थे और देखा, जितनी देर देखा हुसैन को देखा। मैं रसूल की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूल ने कितना हुसैन को देखा, हुसैन ने रसूल को कितना देखा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सहाबी की बता रहा हूँ। ये सहाबी अफजल सहाबा, रसूल के बेटे इमाम हुसैन गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हट गए और रास्ता काफी रास्ता दे फिर आगे गए। हम इतना लंबा नहीं, 11 सफ को आगे बढ़ा देता हूँ। जब बिल्कुल दूसरी सफ में थे तो हजरत सैयदना फारूक आज़म, वो फारूक आज़म के अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी हुजूर की हदीस अगर कोई लेके आता तो लकड़ी लिए रहते, लकड़ी लेके आते और खड़े रहते। ना बयान करो, डर से जल्दी बयान नहीं करता था कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया, हुकूमत के कब्जे में न चला दे। ना इतने सख्त थे इस्लाम के मामले में। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हट गए। जितनी देर हटे हुसैन को देख रहे हैं ना, यही समझाना, हुसैन को देख रहे हैं ना। अब आगे सिद्दीक़ अकबर, बिलाल हबशी के बगल में हजरत सिद्दीक़ अकबर है। हजरत बिलाल हबशी के बगल से हजरत सिद्दीक़ अकबर हट गए और इमाम हुसैन आगे चले और चूक गए। तो उस वक्त पहुंचे जब रसूल सजदे में चले गए। तवज्जो चाहिए। अब जब रसूल सजदे में गए तो हजरत इमाम हुसैन कांधे पर सवार हो गए। अब नुक्ता नोट कीजिएगा, आका ने फरमाया कि अगर मेरा बेटा क़यामत तक मेरे कांधे पर सवार रहता तो मैं सजदे को क़यामत तक लंबा करता। इसी पर इसी यही नुक्ता आपके समझ में आना। अब मुझे सारे मौलाना साहब, मैंने हैदराबाद में बयान किया है और माशाअल्लाह इसकी बड़ी तफसील वहाँ बयान किया है, मगर उतना लंबा तो नहीं बयान कर सकता हूँ, छोटा बयान कर रहा हूँ। रसूल ने क्या फरमाया, अगर क़यामत तक मुझे हुसैन के लिए सजदा लंबा करना होता तो मैं क़यामत तक सजदा तो लंबा। अब मौलवी साहब से पूछो, उन मौलवियों साहब से पूछो कि यहाँ पर कौन अफजल है, सजदा अफजल है कि हुसैन? बस इतना ही पूछना, सजदा अफजल है कि हुसैन? अगर सजदा अफजल है तो हुजूर हटा देना चाहिए। सजदा अफजल था तो हुजूर को इमाम हुसैन को हटा देना चाहिए था, उठ जाना चाहिए था। मगर रसूल फरमा रहे हैं कि क़यामत तक अगर हुसैन मेरे कांधे पर सवार होता और नहीं नीचे नहीं करता तो मैं क़यामत तक के लिए सजदे को बोलिए लंबा कर देता। इसीलिए तो महदी कदम इखलास ने फरमाया कि रसूल के सामने उस वक्त सजदा नहीं, हुसैन अफजल थे। इसलिए कि जिस हुसैन को रसूल ने सजदे की हालत में कांधे पर उठाया था, उसी हुसैन ने करबला में सजदे के मकाम को कायम कर दिया। और एक और छोटी सी बात मैं कहकर अपनी तकरीर खत्म करूँ। जिसकी बारगाह में आप बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत कायदे मिल्लत आपके मामू जान भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात कहता हूँ, कई सिलसिले से, कई तुरुक से हजरत के मखदूम पाक के खानदान से आपका ताल्लुक, इतना मजबूत ताल्लुक, इतना गहरा ताल्लुक। मैं आपको बताता हूँ, मैं बीमार पड़ गया, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं बीमार पड़ गया, सख्त अलीज हो गया। पिछले साल लॉकडाउन में यहाँ पर मुकम्मल तौर से पाबंदी थी। मैं आया जुमा पढ़ाने के लिए और हाल ये था कि मुझे हॉल चढ़ा हुआ था, जैसे और लोगों को हॉल चढ़ा हुआ था। उस वक्त कोविड-19 का मुझे भी हो गया। इत्तेफाक की बात है, वॉचमैन वहाँ पर बैठा हुआ था। मैंने ढकढकाया, कहा इजाज़त नहीं है खाने की। मैंने कहा देखो, आप हजरत से कह दो कि मुझे 1 मिनट के लिए जाने दो। आप अंदाज़ा लगाएं, 28 तारीख थी, मैं अंदर आया, दरवाज़ा बिल्कुल
टेढ़ा हुआ था, मैं बाहर खड़ा हो गया। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं हुजूर सरकार कला का खलीफा हूँ, आपकी तवज्जो ये तहरीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। बारगाह में खड़ा हो गया और मैंने कहा कि हुजूर मैं सरकार कला से दूर हूँ, वो मुझसे दूर नहीं है, मगर आज आपकी बारगाह में इसलिए आया हूँ कि आप सरकार कला के नूरे नजर है, आप शाह हुसैन के नूरे रखते जिगर है, आप महबूब सन्ना के यहाँ वारिस है, मेरा कोई पुलिसों बंखार नहीं है। रंगे काबा की कसम खा कर कहता हूँ, जब मैं खड़ा हुआ थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पुष्ट के ऊपर अपना हाथ रख दिया हो और कह रहा हो कोई हो या ना हो, तुम्हारा आइशा तुम्हारे साथ है। तो ये अकीदत से मिलती है। आपकी अकीदत जिनसे जितनी मजबूत होगी अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही मिलेगा। आखिरी जुमला कहकर अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कुछ लेना हो तो अगर असल मौजूद है तो असल से लो, और असल अगर चला गया तो उसका जो जानशीन है उससे लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम अशरफ के जानशीन है यहाँ, बेंगलोर में मखदूम अशरफ के जानशीन है, यहाँ सुल्तान सैयद अशरफ के जानशीन है। कौन सुल्तान सैयद अशरफ मियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह तारीख बताती है कि आज तक कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने मूर्ति को, जिसने पत्थर को इंसान बना दिया हो, जिसने पत्थर को इंसान बना दिया हो। अरे जिसका घोड़ा बगैर उसकी इजाजत के न पेशाब करे न नींद करे, अरे वो मखदूम अशरफ, और वो मखदूम अशरफ जिनकी शहंशाहियत का आलम, जिनके वक़ार का ये आलम है कि साहिब मुबरका हज़रत बंदा नवाज के दराज का दोनों का ज़माना एक है। जब आपको मालूम हुआ कि गुलबर्गा मखदूम अशरफ आए थे तो आपने उस जगह पर जाके इस्तिजा किया और हज़रत काबा की कसम शाह अशरफ के आने से इस जमीन को अल्लाह ने जन्नत बना दिया। कि आज साहिब सज्जादा का भी दीदार हो रहा है और उधर साहिब मज़ार का भी दीदार हो रहा है। मैं बस अल्लाह ताला की बारगाह में इतनी दुआ करके रुखसत हो जाऊंगा कि अगर मौत आए, मौत आए इन आले रसूल के हाथों के मौत, इन आले रसूल के हाथों की निस्बत पर मौत आए, इन आले रसूल की मोहब्बत पर मौत आए। सरकार आला हज़रत को पूरी दुनिया जानती है कि नहीं? मुझे बताओ, आप ऐसा नहीं, मैं खुल करके बता रहा हूँ, उलमा यहाँ बैठे हुए आला हज़रत से भी बड़े बड़े आलिम थे, बड़े बड़े आलिम थे, मगर अल्लाह ने जो शोहरत सरकार आला हज़रत को दिया वो किसी और को नहीं दिया किसी को। आप अंदाजा लगाएं कि जब महाराणा शरीफ शाह रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में तशरीफ ले गए तो आपने इरशाद फरमाया कि जब मैंने अपने पीर को पहली मर्तबा देखा तो मैंने अपने पीर के चेहरे में मुस्तफा करीम की झलक देखी, नबी को देखा, यानी पीर के अंदर रसूलुल्लाह को देखा। और यही बुनियाद है कि हज़रत निज़ामुद्दीन यमनी मखदूम अशरफ के खलीफा फरमाते हैं कि जब जब मैं शाह अशरफ को देखता था मुस्तफा करीम की झलक नसीब हो जाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो पीर में सारे पीर मौजूद होते हैं, शर्त यह है कि तुम ईमान के साथ देखो, मोहब्बत के साथ देखो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हुए तमाम सामीन को अपनी तरफ से मुबारकबादी दे रहा हूँ और हज़रत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह आज उसे अशरफी के मौके पर आप सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हुजूर साहिब सज्जादा जो यहाँ पर चल रहा फरोज है, जो बेंगलोर की शान है, बेंगलोर की जान है, क्यों न हो कि दूसरे बेंगलोर चल रहा फरोज है, जो भी लेना है साहिब बेंगलोर से अल्हम्दुलिल्लाह ले सकते हैं। आइए हमारा अपनी इस मुसल्लु को यहीं पर खत्म करते हुए साहिब सज्जादा की बारगाह में जो गुलकोशी का रस्म पेश किया जा रहा है, इंशाअल्लाह आगे की कार्रवाई नतीजे सुन्नत इंशाअल्लाह इरशाद फरमाएंगे। आगे की कार्रवाई जो भी होगी वो पेश करेंगे। आखिरी बार अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अच्छा भाई अभी देखिए हमको हज़रत फूल पहनाया, आखिरी बात सुन लीजिए।
पिछली मरतबा में सुना था, मज़ा आ जाएगा। उनको मौलाना साहब को भी फूल पहनाया गया, बहुत लोगों को फूल पहनाया गया। हम लोग सीखना है कि मुर्दा, हाँ, किसी जालिए साहब को मुर्दा लगते हैं, हाँ, तो फूल जिंदों को पहनाया जाता है, मुर्दों को फूल नहीं पहनाया जाता। जिस कबर पर फूल देखो समझ लो जिंदा, समझाने की जरूरत नहीं, समझ लो जिंदा है। एक फूल जिंदों को पहनाया जाता है, जिंदों से जिंदों का ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या हिंदू करम है, शहीद अल्लाह तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उल्टा क्या जाने, खुद रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रसाल को शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और शान हुसैन शर्मीनिया का शेर में भूलता है कोई हो मुत्तकी हो आलिम ज़ाहिर ज़माने में, कोई हो कोई हो मुत्तकी हो आलिम ज़ाहिर ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आपको चाहिए कि हम हज़रत की दस्तपोशी करें और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत से अपनी आँखों को मुनव्वर उजाला करें। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो, तेरा माइक लगा भाई। एक जरूरी है ऐलान समाप्त फरमाए। कल के जैसा कि आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, उसके बावजूद एक बार आप अपनी हज़रात से बात करवा लें कल के प्रोग्राम के बारे में। कल इंशाअल्लाह बाद नमाज़ मगरिब से लेकर के
सुबह बजे तक महफिल समा का एहतमाम किया गया है, प्रोग्राम रखा गया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप महफिल समा में तशरीफ लाएं और उसके अलावा साहिब मज़ार के वालिद मोहतरम के चादर मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। हज़रत मखदूम ताहिर अशरफ साहब के चादर मुबारक की ज़ियारत कराई जाएगी। आप तमाम हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हाजिर होकर के ज़ियारत चादर मखदूम ताहिर नियत फरमाएं और उसके अलावा समा का जो बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया है वो समा के प्रोग्राम को समाप्त करें। और अभी लंगर का इंतजाम है, आप तमाम हज़रात जाने से